Now today we study the anatomy of the trachea, esophagus and thoracic duct. Trachea, as you know, it is the windpipe, esophagus, the food pipe, and one more, the thoracic duct, which thoracic duct carries the lymph. It is the largest lymphatic duct of the body. The trachea extends, you know very well, it extends from the sixth cervical vertebra. Sixth cervical vertebra is the lower border of the cricoid cartilage. It extends from the lower border of the cricoid cartilage to the lower border of fourth thoracic vertebra. You know the fourth thoracic vertebra is the sternal angle. At sternal angle, it divides into right and left principal bronchi. Trachea divides or bifurcates into right and left bronchi at the level of fourth thoracic vertebra. The arterial supply of trachea is inferior thyroid arteries, which are the branches of, you know, inferior thyroid arteries are the branches of thyrocervical trunk. Venous drainage of trachea is into the left brachiocephalic vein. Venous drainage मालूम होना चाहिए आपको trachea का. It is into the left brachiocephalic vein. So trachea का arterial supply by inferior thyroid arteries and venous drainage into the left brachiocephalic vein. Lymphatic drainage of trachea into the pretracheal and paratracheal nodes, lymphatic nodes, pretracheal and paratracheal group of lymph nodes. Lymphatic drainage of trachea, एक तो pre मतलब anterior to the trachea, para मतलब along the trachea, groups of lymph nodes. Narrow supply of trachea, parasympathetic narrow supply through the both the vagus nerves and both the recurrent laryngeal nerves. You know the recurrent laryngeal nerves are the branches of vagus nerves and they run in the tracheo-esophageal groove. Between the trachea and esophagus groove जो रहता है वो tracheo-esophageal groove कहलाता है और in between the tracheo-esophageal groove runs the recurrent laryngeal nerve. By recurrent laryngeal nerve injury के कारण hoarseness of the voice होती है, ये हमने head neck में पढ़ा है. तो ये सप्लाई करती है ट्रेकिया को. Parasympathetic nerves through vagi and recurrent laryngeal nerves. This parasympathetic nerve supply is sensory and secretomotor to mucous membrane and motor to trachealis muscle. ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो रहती है बच्चों ये सेंसरी रहती है और सिक्रीटोमोटर रहती है टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रेकिया एंड मोटर टू द ट्रेकियालिस मसल. हमें मालूम है ट्रेकिया के पीछे ट्रेकियालिस मसल रहता है जो कि स्मूथ मसल रहता है. उस स्मूथ मसल को भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई रहता है थ्रू वेगा एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स के थ्रू. एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई टू द ट्रेकिया इज थ्रू middle cervical ganglion. It is through middle cervical ganglion. It is vasomotor. Sympathetic supply is vasomotor. What is tracheal duct? हमने जब ट्रेकिया पढ़ा था शुरू में इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स में जब हमने ट्रेकियल डक्ट पढ़ा था. आर्च ऑफ एओर्टा लाइज इन क्लोज रिलेशन. आर्च ऑफ एओर्टा लाइज इन क्लोज रिलेशन और यू मे कॉल इट arch of aorta lies in the vicinity of the trachea and left bronchus. Left bronchus और ट्रेकिया की विसिनिटी में आर्च ऑफ एओर्टा प्रेजेंट रहता है. एंड इन एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टिक आर्च. एन्यूरिज्म मींस डायलेटेशन, लोकलाइज्ड डायलेटेशन ऑफ एन आर्टरी और एओर्टिक आर्च मतलब एओर्टिक आर्च का डायलेटेशन. सो इन एन्यूरिज्म ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा a small pull or drag is felt on the trachea क्योंकि ट्रेकिया के विसिनिटी में ही है आर्च ऑफ एओर्टा. एंड इन एन्यूरिज्म ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा a small pull or drag is felt on the trachea which is known as tracheal duct.
क्या कहलाता है ये? ट्रेकियल टग. Arch of aorta lies in close relation to the trachea and left bronchus. In aneurysm of aortic arch, that is arch of aorta, a small pool or drag is swelled on the trachea, which is known as tracheal tug. ये देखिए ट्रेकिया सिक्स्थ, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से T4 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करता है. इसकी लेंथ रहती है 10 to 15 सेंटीमीटर तक. C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से T4 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ट्रेकिया, और इसकी ट्रेकियल रिंग्स रहती है जो कि इसको पेटेंट रखती है इसकी ल्यूमेन को. पोस्टीरियरली ट्रेकियल रिंग्स डिफिशिएंट रहती है फॉर द डायलेटेशन ड्यूरिंग डिग्लूटेशन ऑफ इसोफेगस. डिग्लूटेशन होगा इसोफेगस में, फूड बोलस पास होगा तो उसको पैसेज चाहिए. तो ट्रेकियल रिंग्स आर डिफिशिएंट पोस्टीरियरली. नाउ द ट्रेकिया बाइफरकेट्स इनटू राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस एट द एक्सटर्नल एंगल और एट T4 वर्टिब्रा. अब देखिए आप, ट्रेकिया लॉन्ग एक्सिस ऑफ ट्रेकिया makes an angle of 25 degree with the long axis of right principal bronchus, while the long axis of trachea makes an angle of 45 degree with the long axis of the left bronchus. इस डायग्राम का जिस्ट ये है कि कोई भी फॉरेन बॉडी, ये ट्रेकिया इज इन मोर लाइन विद द राइट ब्रोंकस, तो कोई भी फॉरेन बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वो लॉज होगी राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस में, बिकॉज ट्रेकिया इज इन मोर लाइन विद द राइट ब्रोंकस. इट इज मोर इन द लाइन विद द ट्रेकिया इज मोर इन द लाइन विद द राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस. देयरफॉर एनी फॉरेन बॉडी टेंड टू लॉज इन द राइट ब्रोंकस. क्लियर? अब देखिए, राइट ब्रोंकस शॉर्ट रहता है, लेफ्ट ब्रोंकस लॉन्ग रहता है, राइट ब्रोंकस वाइड रहता है, लेफ्ट ब्रोंकस नैरो रहता है. अभी बताया मैंने आपको, राइट ब्रोंकस मोर इन लाइन विद ट्रेकिया, लेफ्ट ब्रोंकस मोर डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट, hence not in the line with trachea. Right bronchus usually divides before entering into the lung. Left bronchus usually divides after entering into the lung. Right bronchus divides into 3 lower bronchi. Left bronchus divides into 2 lower bronchi, क्योंकि लेफ्ट लंग के 2 लोब्स रहते हैं, राइट लंग्स के 3 लोब्स रहते हैं. और right bronchus is more vertical, left bronchus is less vertical. Indications for tracheostomy. Tracheostomy means making an hole in the trachea. Second और third tracheal rings के बीच में trachea में hole बनाया जाता है for artificial respiration, where it is commonly performed in the following conditions. Tracheostomy is performed in laryngeal obstruction. larynx में कोई obstruction हो रहा है तो उस कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म की जाती है. फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशंस, बहुत ज्यादा एक्सेसिव सिक्रीशंस डिपॉजिट हो गया हो ट्रेकिया में, तो उस कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म की जाती है. ओस्टोमी मींस मेकिंग एन होल, जैसे आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, ऐसे ही ओस्टोमी सफिक्स लग जाता है, मींस मेकिंग एन होल टू गिव लॉन्ग कंटिन्यूड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. जैसे कि वेंटिलेटर पे रखना हो पेशेंट को तो उसमें ट्रेकियोस्टोमी की जाती है. तो इंडिकेशंस फॉर ट्रेकियोस्टोमी एंड द साइट वेयर इट इज कॉमनली परफॉर्म्ड. तो कॉमनली परफॉर्म्ड ये होता है, ट्रेकियोस्टोमी इज कॉमनली परफॉर्म्ड इन रिट्रोथायराइड रीजन. रिट्रो मींस बिहाइंड, थायराइड मींस थायराइड ग्लैंड के बिहाइंड. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. Tracheostomy is commonly performed in which region? तो retrothyroid region. After cutting the isthmus of thyroid gland. isthmus second, third और fourth tracheal rings के कट करने के बाद retrothyroid region में
होता है ये। एंड मेकिंग एन होल इन द ट्रेकिया बाय कटिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स। ट्रेकिया में होल बनाया जाता है। वो थायराइड, रिट्रोथायराइड रीजन में बनाया जाता है। थायराइड को रिट्रैक्ट करके, थायराइड ग्लैंड को रिट्रैक्ट करके, by making a hole in the trachea by cutting second and third tracheal rings. Esophagus, you know esophagus is trachea के बारे में पहले भी हम बहुत पढ़ चुके हैं, and this is I think more than sufficient about the trachea. Now about the esophagus. Esophagus, it is a narrow muscular tube which begins in the neck at the lower border of cricoid cartilage. It also begins at the lower border of the cricoid cartilage or the sixth cervical vertebra. ये भी sixth cervical vertebra पे begin होती है and ends in the abdomen at the lower border of T11 vertebra. Abdomen में end होती है at the lower border of T11 vertebra, at which cardiac orifice of stomach. Stomach के कार्डियक ऑरिफिस पे, एक स्टमक का कार्डियक ऑरिफिस होता है, दूसरा पाइलोरिक ऑरिफिस होता है। तो कार्डियक ऑरिफिस पे इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। Esophagus is about 25 centimeter long and provides passage for bolus and liquids during the third stage of swallowing. Esophagus जो है passage for bolus and liquids during the third stage of deglutition or swallowing. ये देखिए, pharynx, cricopharynx is the narrowest portion, then pharyngoesophageal junction, muscular sling formed by right crus of the diaphragm. ये फाइबर्स हैं जो L1, L2, L3 वर्टिब्रा से ओरिजिन लेते हैं, डायफ्राम की ओरिजिन फाइबर्स राइट क्रस के। और ये कार्डियक ऑरिफिस, ये कार्डियक ऑरिफिस है स्टमक का, यहाँ पर एंड होता है। वो बिगिन कहाँ पर होता है? C6 वर्टिब्रा के लेवल पे। इसके तीन पार्ट्स होते हैं ईसोफेगस के। एक पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, सर्वाइकल पार्ट, सॉरी, एक पार्ट होता है सर्वाइकल पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन, जो कि 4 सेंटीमीटर है। दूसरा पार्ट है इसका thoracic part which is present in the thorax, टोटल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। उसमें सर्वाइकल पार्ट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, thoracic पार्ट की लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड एब्डोमिनल पार्ट की लेंथ है 1 to 2 सेंटीमीटर। T6 से T11 इसका एक्सटेंट है ईसोफेगस और फूड पाइप का। नेरोएस्ट पोर्शन इसका क्रिकोफेरिंग्स है और एक्सटेंट है क्रिकोफेरिंग्स से कार्डियक ऑरिफिस ऑफ द स्टमक तक। साइट्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द ईसोफेगस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the sites of constrictions in the esophagus? It presents constriction at following 4 sites. There are 4 anatomical sites of constrictions in the esophagus. First at its commencement 6 inches from incisor teeth. बेटा ये sites हम incisor teeth से काउंट करते हैं। तो पहला साइट इसका आता है 6 इंचेस फ्रॉम इंसाइजर टीथ। ये सेंटीमीटर्स में भी दिया रहता है पर मैंने यहाँ पर इंचेस में काउंट करा है। तो पहला साइट इसका कॉन्स्ट्रिक्शन का है एट इट्स कमेंसमेंट, यानी यहाँ पर क्रिकोफेरिंग्स है वहां पर, एंड इट इज 6 इंचेस फ्रॉम द इंसाइजर टीथ। सेकंड साइट है वेयर इट इज क्रॉस्ड बाय आर्च ऑफ एओर्टा, where it is crossed by arch of aorta and it is 9 inches from the incisor teeth, 9 inches from the incisor teeth. Third site है इसके constriction का where it is crossed by left bronchus, where it is crossed by left bronchus and it is 11 inches from the incisor teeth. And fourth site है where it pierces the diaphragm and it is 15 inches from the incisor teeth. So there are 4 sites
फर्स्ट साइट है उसका एट इट्स कमेंसमेंट 6 inches from the incisor teeth. Second site है where it is crossed by arch of aorta 9 inches from the incisor teeth. Incisor teeth से काउंट करते हैं इसका. Third है where it is crossed by left bronchus 11 inches from the incisor teeth. And fourth where it pierces the diaphragm 15 inches from the incisor teeth. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, पहले ये देख लीजिए आप डायग्राम में. अपर इंसाइजर टीथ से लेते हैं. पहला क्रिकोफेरिंग्स पे है 6 inches फ्रॉम द इंसाइजर टीथ. सेकंड है इसका 9 inches फ्रॉम द इंसाइजर टीथ, ये आर्च ऑफ एओर्टा के यहाँ पर है. तीसरा लेफ्ट ब्रोंकस के वहां पर है 11 inches फ्रॉम द इंसाइजर टीथ. और फोर्थ है इसोफेजियल हाइटस इन डायफ्राम 15 inches from the incisor teeth. ये 4 कॉन्स्ट्रिक्शन के साइट्स हैं. पहला क्या है क्रिकोफेरिंग्स, दूसरा है आर्च ऑफ एओर्टा, थर्ड है लेफ्ट ब्रोंकस से जहां क्रॉस होता है, और फोर्थ है इसका इसोफेजियल हाइटस इन दी डायफ्राम. कौन से वर्टिब्रल लेवल पे रहता है इसोफेजियल हाइटस? इंफीरियर वीना के बाद T8, इसोफेगस T10 और एओर्टा T12. तो ये T10 लेवल पे है इसोफेजियल हाइटस 15 inches फ्रॉम द अपर इंसाइजर टीथ. तो क्रिकोफेरिंग्स वाला 6 inches, आर्च ऑफ एओर्टा वाला 9 inches, लेफ्ट ब्रोंकस वाला 11 inches और इसोफेगस का डायफ्राम के अंदर वाला 15 inches. अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉन्स्ट्रिक्शन साइट्स इन द इसोफेगस. They are the sites where swallowed foreign bodies can be lodged. कोई भी swallow करी हुई foreign bodies, कोई भी अल्पिन हुई या कोई भी foreign bodies हुई, ये कोई भी यहाँ पर constriction का site है, तो they may be lodged at these foreign sites, at these constriction sites. Foreign body यहाँ पर lodge हो सकती है और trauma पहुंचा सकती है esophagus को. They are the sites which may cause difficulty in passing the esophagoscope. जो एंडोस्कोप हम ऊपर से डालते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोप, वो पास करने में डिफिकल्टी होगी यहाँ पर, क्योंकि दे आर दी साइट्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन. एंडोस्कोप भी करते हैं जो सर्जन, उनको इसका नॉलेज होना चाहिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन साइट्स का, जब एंडोस्कोप वो पास कर रहा है तो. एंड दीज आर दी साइट्स वेयर स्ट्रिक्चर्स फॉर्म इफ एनी करोसिव लिक्विड इज स्वॉलोड. कोई भी करोसिव लिक्विड स्वॉलो कर जाता है पॉइजनिंग के केस में, तो दीज आर दी साइट्स वेयर स्ट्रिक्चर्स फॉर्म, स्ट्रिक्चर बन जाते हैं यहाँ पर. इज इट क्लियर? आई थिंक ये राइस ट्यूब पास करते हैं जब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जब पास करते हैं हम. नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इसलिए पास करते हैं कि कोई भी फूड नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से कोमेटोस पेशेंट को देना हो, कोमा में कोई पेशेंट है और उसको हमें फूड देना हो, तो उसको राइस ट्यूब से देना पड़ता है या नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से देना पड़ता है. तो नेजोगेस्ट्रिक मतलब नेजल कैविटी से स्टमक के अंदर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं. तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन इसोफेगस में जो है इनका नॉलेज होना चाहिए नहीं वो ट्यूब पास करते समय. सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन, एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन और डायफ्रेगमेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन, ये 4 कॉन्स्ट्रिक्शन के साइट्स. Structures present between esophagus and vertebral column. What are the structures which are present between the esophagus and vertebral column? So esophagus और vertebral column के बीच में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं? कोई घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, जितना याद रहे उतना याद रखिए इजीली, और जो याद नहीं रहे उसका टेंशन मत करिए. थोरेसिक डक्ट, वीना एजाइगस मीन्स कुछ नहीं, एजाइगस वेन है. हेमी एजाइगस वेन जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस वेन, एसेसरी हेमी एजाइगस वेन एंड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज. These are the structures which are present between the esophagus and vertebral column.
और इसोफेगस के ऊपर और कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है? ट्रेकिया इन द सर्वाइकल रीजन. Divisions of esophagus. The esophagus is divided into three parts: cervical part, thoracic part, and abdominal part. Blood supply of esophagus, arterial supply, cervical part का वही inferior thyroid artery, thoracic part का esophageal branches of aorta, cervical part का inferior thyroid artery जैसे ट्रेकिया का भी inferior thyroid artery का which is a branch of thyrocervical trunk. Thoracic part of esophagus का है esophageal branches of aorta. Abdominal part का है esophageal branches of left gastric artery. Left gastric artery is a branch of celiac trunk. हम पढ़ेंगे इसको abdomen में. Celiac trunk is a branch of is a artery of foregut. Venous drainage. Cervical part drains into brachiocephalic vein. Thoracic part drains into azygous vein, and abdominal part into portal vein through left gastric vein. Lower end is site of portosystemic anastomosis. ये portosystemic anastomosis भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एब्डोमेन पढ़ेंगे कि पोर्टल वेन और सिस्टेमिक वेन का एनास्टोमोसिस होता है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में. इसी से इसोफेजियल वेराइसिस होते हैं और हिमेटेमेसिस होती है जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है. तो क्योंकि ये वेन लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे पोर्टल वेन और सिस्टेमिक वेन्स का एनास्टोमोसिस डायलेट हो जाता है और ये वेन्स डायलेट होने के कारण रप्चर होती है और इसी से ब्लड की वोमिटिंग होती है. उसी को बोलते हैं हिमेटेमेसिस. पोर्टल हाइपरटेंशन में मिलती है. Narrow supply of esophagus. Parasympathetic nerves. The parasympathetic fibers are derived from recurrent laryngeal nerves. Tracheoesophageal groove में जो recurrent laryngeal nerves थी, and esophageal plexuses formed by vagus nerve. Esophageal plexuses form. बेटा vagus nerve को इसीलिए बोलते हैं कि they are longest course. हेड नेक से लगा के तो पेल्विस तक आ जाती है. They provide sensory, motor, and secretomotor supply to esophagus. They provide sensory, motor, and secretomotor supply to esophagus. The sympathetic fibers are derived from T5 to T9 spinal segments, and they are sensory and vasomotor. यानी T5 segment of spinal cord से लगाकर T9 segment of spinal cord तक, and they are sensory and vasomotor. Lymphatic drainage. Cervical part, the lymph is drained into deep cervical lymph nodes. Thoracic part, lymph is drained into posterior mediastinal lymph nodes, and abdominal part, lymph is drained into left gastric lymph nodes. Lymphatic drainage. Cervical part का lymph is drained into deep cervical lymph node. Cervical part neck में present है तो deep cervical lymph nodes. Thoracic part का posterior mediastinal lymph nodes, and abdominal part का left gastric lymph nodes. Stomach के lymphatic drainage में पढ़ेंगे हम gastric lymph nodes. एक्लेजिया कार्डिया ये क्लिनिकल कंडीशन है. इसको क्या बोलते हैं? एक्लेजिया कार्डिया. क्या है ये? It is a condition of neuromuscular incoordination. ये नर्व और मसल का न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन है. बेटा जैसे जैसे पेरिस्टाल्सिस होती है फूड आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जब न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की कंडीशन होती है in which lower end of esophagus fails to dilate when food is swallowed. Lower end of esophagus fail to dilate when food is swallowed. तो उसमें क्या होगा? As a result, food accumulates in the esophagus. This condition is clinically known as eclasia cardia. It is a condition of neuromuscular incoordination in which lower end of esophagus fails to dilate when food is swallowed. As a result, food accumulates in the esophagus. क्योंकि डायलेट ही नहीं हो रहा है लोअर एंड, तो फूड आ रहा है ऊपर से, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा.
ये देखिए, व्हाट इज थोरेसिक डक्ट? थोरेसिक डक्ट, अब हम थोरेसिक डक्ट पढ़ रहे हैं, इसोफ्लेगस इज कंप्लीट। थोरेसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट। ये जो है होल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट राइट अपर क्वाड्रेंट, पूरी बॉडी से लिम्फ को ड्रेन करती है थोरेसिक डक्ट, होल ऑफ द बॉडी। ये देखिए, whole of the body except right upper quadrant drained by thoracic duct. Lymphatic drainage, whole of the body except right upper quadrant drained by thoracic duct, or right upper quadrant of the body drained by right lymphatic duct. Right upper quadrant को कौन ड्रेन करता है? फिर right upper quadrant of the body को थोरेसिक डक्ट ड्रेन नहीं करती है, तो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द बॉडी को ड्रेन करती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। और बाकी पूरी बॉडी को, होल ऑफ द बॉडी को ड्रेन बाय थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट की लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर, इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और आपको याद होना चाहिए 45 सेंटीमीटर लेंथ के और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रहते हैं। आज मैंने आपको ईसोफेगस बताया, उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। आपको और स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, वाइवा में पूछते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर रहते हैं जिनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। ये देखिए, ये सिस्टर्ना चाइलाए के वहां से थोरेसिक डक्ट बिगिन होती है। और मैंने आपको बताया था डायफ्राम में एओर्टिक हाइटस या एओर्टिक ओपनिंग से थोरेसिक डक्ट पास होती है T12 लेवल से। ये T12 लेवल से। अच्छा, इसका अपीयरेंस आप देख रहे होंगे, ये माला सरी का अपीयरेंस, बीडेड अपीयरेंस है इसका। बीडेड अपीयरेंस क्यों है इसका? बिकॉज in the lumen of thoracic duct there are numerous valves. Valves मतलब इसके अंदर unidirectional flow of lymph होना from abdomen into the thorax, इसलिए numerous valves होते हैं, इसलिए इसका appearance beaded appearance रहता है। और it passes from T12 level through the aortic hiatus, and it passes from thorax. Length of thoracic duct is 45 centimeter. It begins from cisterna chyli near the lower border of T12 vertebra, ends into the angle of junction between the left subclavian and left internal jugular vein at the level of T2 vertebra. कहाँ पर एंड होती है बेटा? ये ends into the angle of junction between the left subclavian and left vein में क्यों एंड होती है? बिकॉज ऑलमोस्ट जो कोर्स सिस्टम और फाइन सिस्टम ऑफ ड्रेनेज रहता है वो वेन के अंदर ही जाता है अल्टीमेटली, तो ये वेन में ही ड्रेन होगी। तो इट एंड्स इनटू द एंगल of junction between the left subclavian and left internal jugular vein at level of T2 vertebra. The duct appears beaded due to presence of numerous valves in its lumen. ये सिस्टर्ना कायला हमें डिसेक्शन में नहीं दिखता है बच्चों। दिस इज द थोरेसिक डक्ट। ये देखो यहाँ पर ये एंड हो रही है, कहाँ पर एंड हो रही है? लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के जंक्शन। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हो गई? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, लेफ्ट ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक, डिसेंडिंग, यहाँ पर आए हम, डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ ट्रंक, डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ ट्रंक, फिर यहाँ पर आए हम ये असेंडिंग लंबर लिम्फ ट्रंक, और इलियाक रीजन में आए हम, ये हो गई इलियाक लिम्फ ट्रंक्स। लिम्फेटिक चैनल है। अच्छा, इसमें जो चाइल्ड को ड्रेन करती है, ये
because in digestion of fat, in the gastrointestinal tract, chyle is formed by the digestion of fat, and it is absorbed in the thoracic duct, and it's due to which it appears white. इसके अंदर चाइल जो रहता है वो white रहता है. Relations of thoracic duct in aortic opening of diaphragm. मैंने बताया आपको एओर्टिक ओपनिंग के थ्रू ये डायफ्राम में जो एओर्टिक ओपनिंग रहती है उसके थ्रू ये एब्डोमेन से थोरेक्स में आती है. तो एंटीरियरली इसके डायफ्राम रहता है, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम रहता है, टू दी लेफ्ट एजाइगस वेन रहती है और टू दी राइट एओर्टा रहता है. क्या क्या रिलेशन है इसका thoracic duct का in the aortic opening of diaphragm? Anteriorly diaphragm, posteriorly vertebral column, to the left azagus vein and to the right aorta. The tributaries of thoracic duct are in the thorax channels from posterior intercostal nodes at the root of neck, left jugular trunk, left subclavian trunk. जो मैंने डायग्राम बताया वो आप ड्रॉ कर लीजिए आपकी बुक में से. इसकी ट्रिब्यूटरीज के लिए दैट इज सफिशिएंट, ये मत लिखिए आप. एरियाज फ्रॉम विच थोरेसिक डक्ट ड्रेन्स लिम्फ, वो शुरू में बताया था मैंने आपको. बोथ हाउस ऑफ बॉडी बिलो डायफ्राम बताया था ना, बोथ हाउस ऑफ बॉडी, both house of body below diaphragm, both house of body below diaphragm, and left half of the body above diaphragm, left half of body above diaphragm, both halves of body below diaphragm and left half of body above diaphragm. Left half above diaphragm, both halves of the body below diaphragm and left half above diaphragm. These are the areas from which thoracic duct drains lymph. Thank you.